السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ایک شاعر. کیا نام ہے حضور آپ کا؟ عبد المجید ٹکر. عبد المجید ٹکر صاحب کے ہمراہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں اور یہ ان کی چوتھی بیگم بتائی جاتی ہیں. اور ڈمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں ہمارے دوست جناب طارق عزیز. ماشاءاللہ. آئی کولر نہیں لے آئے؟ خواتین حضرات، آج کا موضوع چونکہ قدر سنجیدہ ہے اس لیے ہم نے نسبتاً نوجوان نسل کے شاعروں کو دعوت دے رکھی ہے. غافر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ساتھ ہی سعد اللہ شاہ، عابد فاروق صاحب اور احمد سہیل بسرا صاحب. موضوع دراصل یہ ہے کہ شاعری کا فائدہ کیا ہے. کیا شاعر سچ مچ گپی اور لپاڑیے ہوتے ہیں یا انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر شاعر حضرات آپ یہ مہین سے کمزور سے کیوں ہوتے ہیں؟ انتہائی روایتی سا ٹپیکل سا حلیہ کیوں اپنا رکھتے ہیں؟ جی میں بھی کھانے پینے کا شوق رکھتا ہوں. میں پان کھاتا ہوں، گٹکا کھاتا ہوں. لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو ہے نا ساری بیماریاں دس رہے ہیں. میں چھالیاں بھی کھاتا ہوں، یہاں درد ہوتا ہے. اچھا سر چھوڑیے، بتائیے کاروبار کیا کرتے ہیں؟ میں سرکاری ملازم تھا اور وہ تو ریٹائر ہو گیا نا ریسنٹلی. جی. اس وقت کیا شغل ہے آپ کا؟ ایک کتاب گھر ہے میرا بڑا چھوٹا سا اور میں کتابیں وغیرہ چھاپتا ہوں اس میں. ایک سوا چھاپ کے دیکھ پہ دے شاعری کس عمر میں شروع کی؟ 12-13 سال کا تھا جب سے شروع کی میں نے شاعری. کیا انسپریشن کیا تھی آپ کی؟ جب ہم بہت چھوٹے سے تھے، کوئی 12-13 سال ہماری عمر تھی، اچھا تو ہمیں عشق ہو گیا. عشق ہو گیا؟ جی. ہاں جی، اس بعد بیمار ہو گئے. تو یعنی اتنی کم عمری میں آپ کو پہلا عشق ہو گیا؟ نہیں، پہلا عشق نہیں تھا یہ کوئی 25واں-30واں عشق تھا میرا. 12 سال کی عمر میں؟ جی. ہاں جی، چھیلے جی دائی پھسا لی تھی. بھائی ہم آپ سے شاعری کی بات کر رہے ہیں اور آپ لگاتار بکواس کیے جا رہے ہیں. سر لگاتار نہیں کر رہے، وقفے وقفے میں کر رہے ہیں. اچھا جی سر. پھر ہم نے سوچا کہ ہم کسی جوگے تو ہیں نہیں تو ہم شاعری شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، تو ہم نے شاعری شروع کر دی. آفتاب صاحب انہوں نے دو ہی کام سنجیدگی سے کیے ہیں، شاعری اور شادیاں. ہاں جی، شاعری اور شادیاں. آپ کثرت ازدواج کے حوالے سے بھی بڑے مشہور ہیں. وہ دراصل ہم نے زندگی میں ابھی تک 4 شادیاں کی ہیں. پہلی شادی 4 شادیاں یعنی ابھی مزید اسٹل کاؤنٹنگ. پہلی شادی میں نے اس وقت کی تھی جب میری والدہ نے سوچا کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے. بس پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر اچھا آج شادی کی تھی نہیں انہیں سنیا تو پھر میری تصویر دکھائی کڑی نو اور تصویر نیڑے بھی نہیں دکھائی. ہاں جی، انہیں صرف دور ہی دیکھی. اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ہم نے دوسری شادی کر لی. اچھا جی. پھر معلوم نہیں کیا ہوا، 6 مہینے کے بعد وہ بھی مر گئی. سارے دنیا جو عورتیں مکان ہے قاتل شاعر اور یہ آرڈر تے شادیاں کر. دیکھیے یہ خواہ بکے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہم نے شادی کتنی مشکل سے کی تھی. اس میں مشکل کیا ہوئی؟ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی. اچھا میں چونکہ ان کی زوجہ محترمہ سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں یہ پوچھ لوں کہ اچھا جناب چوتھی تک آپ کیسے پہنچے؟ تیسری شادی پھر کدھر کی بھی؟ جی پھر ہم نے تیسری شادی کی تھی. کس بیس پہ؟ موت بیس پہ. تو ان کی وفات کیسے ہوئی؟ جی جی میں باقی 2 مری ہیں. جی نہیں، یہاں آپ لوگ غلط ہو گئے. اچھا جی، وہ فوت نہیں ہوئی؟ جی وہ فوت نہیں ہوئی تھی. وہ ایک دن سبزی لینے گئی گھر سے اور اس کے بعد واپس ہی نہیں آئی. تو جی اللہ پاک نے جنوں بچانا ہوئے نا ان سبزی والی دکان سے پہ. نہیں سر، کسی ناراضی کی وجہ سے، ناچاکی کی وجہ سے چھوڑ گئی آپ کو؟ وہ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا ہمیں کچھ. یہ تینوں شادیاں آپ نے کراچی میں کی؟ جی. تو پھر پنجاب میں آ گئے؟ ہوں پنجاب جی، کی باری ہے. اچھا کن حالات میں شادی ہوئی؟ سر اس لڑکی نے اس وجہ سے شادی کی ہے کہ میں دیکھوں یہ بیویوں کو مارتا کس طرح. اچھا جی سیریسلی پلیز، ہم سب جاننا چاہتے ہیں آپ نے کیا سوچ کر ان سے شادی کی؟ جی آفتاب صاحب، میں نے بچپن سے ہی سوچ رکھا تھا میں کوئی ایسا کام کروں، کوئی ایسا مشکل کام کہ لوگوں کے لیے میں مثالی ثابت ہوں. سارے خودکشی کرن لگی تھی، یہ سہیلی نے کہا خودکشی حرام ہے، انہوں نے شادی کر. اچھا جی، شاعری سے کوئی شغف ہے؟ نہیں سر، کوئی نثر پڑھی ہو؟ کبھی بھی نہیں. وہ اخبار وغیرہ پڑھتی ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی شاعری سے علاقہ نہیں؟ سچ پوچھے آفتاب صاحب، مجھے تو شاعری سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. مجھے سخت نفرت ہے اور رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کروا دی ہے. تو باجی چاچا انہوں کی سکھا کے بیچنا. اچھا آپ کو ان سے اختلاف کیا ہے؟ اختلافات کیا آفتاب صاحب، روزانہ اتنی چھلانگیں مارتے ہیں، میں آج یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میری کتاب چھپے گی، مجھے انعام مل جائے گا، میں اتنے پیسے لے کے آؤں گا، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں گھر کی.
रोजाना मालिक मकान आके किराए का पूछता है, अरे। बच्चों की फीसों का इसको पता नहीं है, सिर्फ इनको ये पता है कि मैंने शायरी करनी है, शायरी के साथ घर का खाना तो नहीं ना पकता। और कसम से आप यकीन करें, अगर मैं जॉब ना करूं तो सबसे पहले भूखा ये मर जाए। आप क्यों नहीं कुछ छोटा मोटा काम क्यों नहीं करते? हम जॉब के लिए गए थे सर, अच्छा जी, मगर वहाँ उसने मुझे बाहर बिठा दिया, कहने का हम अभी आते हैं, फिर वो शाम तक आया ही नहीं कोई मुझे लेने तो के लिए। अगले दिन चले जाते? अरे वाह, वो कैसे चले जाते हम? हमारी भी कोई अना है, हमारी भी कोई बात है, हम कैसे जाते? हम तो नहीं गए। हम एक दे दे, हम ने मैंने मारता है। हम तो मैं नहीं पूरा तो हम। बाजी तो सिग्नल नहीं, वो बहुत तपी हुई है बेचारी। देखें कितना जेन्युइन तकाजा है कि भाई कोई जॉब कर, भाई कोई ट्यूशन पढ़ा ले, लैंग्वेज तो आती है ना, उर्दू शायरी फरमाते हैं आप। लो, हम कोई पागल है जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए चले जाएं? हम इतने बड़े शायर हैं, हमने शायरी की है, शायर अच्छा लगेगा ट्यूशन पढ़ाता हुआ? देखिए, कोई जिंगल्स विंगल्स क्यों नहीं लिखे आपने? कोई फिल्मी गीत नहीं लिखे आपने? कोई आता ही नहीं हमारे पास लिखवाने के लिए। सर कोई आपके घर आएगा खुद? हम जेन्युइन शायर है, जेन्युइन। जब हम पैदा हुए थे ना, तब भी हम फितरी शायर थे। जी, शायर पैदाइशी होता है, जाहिर है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि शायर ने कोई काम नहीं करना, शायर ने भूखा मरना है और दूसरों को भी मारना है? हम इतने बड़े शायर हैं। और सर इतने बड़े शायर हैं तो क्या आप तो इतने बड़े पैरासाइट हैं? सर ये बताइए कि ये क्या अलमिया है, आप भी तो शायर हैं। देखिए, ये हजरत जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बेसिकली जेन्युइन शायर हैं। अच्छा जी। और जरा इस फलसफे को समझिए कि एक जेन्युइन शायर इस दुनिया में अपनी पैदाइश को एहसान समझता है, वाह, काम की तलाश में जाना अपनी शान के खिलाफ समझता है। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि काम खुद चल के हमारे पास आए। लेकिन आपने तो इस तरह नहीं किया। सर जैनमन शायर की गल कर रहे ने, भाई बस गुजारा ही ने। नहीं, आप शायर तो हैं ना, साहिब दीवान है। हाँ जी, इन्होंने फिल्म चन्ने का रोल भी किया है। यार वो एक रोल था, एक यार, वो रोल। शायरी की बात कर रहे हैं, तू उधर फिल्मों की बात। और उस फिल्म से पैसे नहीं थे मिले, अन्ने बन के डायरेक्टर की बात गए। शायरी एक समंदर है और इसकी गहराई में आप जितना जाएंगे उतना आप मोती निकाल कर लाएंगे। मैडम, आपको शायरी से शगफ नहीं है? मैं कहा चाचा जी मेरी गल मेरे को एक शायर नहीं सांभया जान दिया, दूजा फेर अब मैं शायरों का चार पाना है। तो ये बात आप धीमी आवाज में भी करते नहीं, मैं तो आपकी इज्जत भी बहुत करती हूँ। मेहरबानी, मैं आपकी जितनी करता हूँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नहीं, आप भी तसव्वुर कर सकते हैं, मेरी नानी भी आपकी फैन थी। हद हो गई आफ्ताब भाई, इतना बड़ा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना। नहीं, आपकी नानी, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपकी नानी क्या करते देखती थी? ए काले टीवी ते जो कूलर वंडिया करते सन। अच्छा जी, हम जरा गाफिर शहजाद साहब से आप बताइए कि शायरी का फायदा क्या है? जनाब, ये जो शायरी है ये कोई कमोडिटी नहीं है, क्योंकि हमारी सोच आजकल इसी हवाले से चलती है, तो हम हर चीज में फायदा ढूंढने लग पड़ते हैं। बिल्कुल तो दुरुस्त। शायरी का ताल्लुक तो इंसान की रूहानियत से है, इंसान के इनर सेल्फ से है, जहां पर ये नफा नुकसान और ये फायदे वाली बातें बेमानी हो जाती हैं। शायर बेसिकली सोसाइटी का एक दानिशवराना सा एंटरटेनर होता है, और उससे ज्यादा अगर उससे एक्सपेक्ट किया जाए तो ये गलत है। आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, सोसाइटी में इस बात को बाकायदा फैलाया गया है कि एंटरटेनर होता है। आज हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं, जो मुगलों के लिबादे में हम देख सकते हैं उनको, उनके यहाँ भी ऐसे कुछ शायर मौजूद हैं जो लतीफे सुनाते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो ना तो शायरी से सीरियस होते हैं और ना ही उनका शायरी से उस तरह का कोई ताल्लुक होता है। वो शायर नुमा चीजें होती हैं। फिर भी अगर एंटरटेनर नहीं है तो फिर करता क्या है सोसाइटी? शायर जो है वो हमारी फिक्र को, हमारी दानिश को, हमारी सोच को और हमारे एहसास को, और जो सोसाइटी की एक साइकी है उसको खूबसूरत लफ्जों में पिरो के लोगों तक पहुंचाता है। आप देखिए कि 700-800 साल तक बाबा फरीद ने, शाह हुसैन ने, सुल्तान बाहू ने, बाबा बुल्ले शाह ने शायरी के जरिए सोसाइटी को एक ऐसा पैगाम दिया कि जिसकी वजह से वो सोसाइटी बड़ी बैलेंस सोसाइटी रही। आज हमने शायरों को पीछे हटा दिया तो हमारे दहशतगर्द सामने आ गए हैं। नहीं, ये जो अहबाब आज शायरी कर रहे हैं, क्या वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं? उनके नक्शे कदम पे कतन नहीं चल रहे, इसलिए कि जो ये कंज्यूमर सोसाइटी की आपने बात की वो इतनी डोमिनेटिंग हो गई है और उनको इतना मार्जिनलाइज कर दिया गया है शायरों को कि वो तो बेचारे महज अपनी जात के इजहार और इस फन को संभाले हुए समझें कि इस दुनिया में गुजारा कर रहे हैं। जी,
डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो कि साहबजादे थे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाए डॉक्टर अल्लामा इकबाल के, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारी अम्मा अक्सर इस चीज की शिकायत करती पाई गई, इकबाल साहब कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं, आपने वकालत की हुई है, अच्छा भला पेशा है, आप वकालत छोड़ के और यहाँ पर घर में बैठे लिखते रहते हैं, किस काम में आप पड़ गए हैं। तो उनकी जो अमली जिंदगी है या अमलियत पसंदी जो है वो हमें शायरों की जिंदगी में बहुत कम नजर आती है। हमारा अपना एक वाक्य है जिसका मैं खुद गवाह हूं। जफर इकबाल साहब के एक इंतहाई अजीज दोस्त थे सलाहुद्दीन महमूद मरहूम। उनकी वालदा साहिबा उन्हें कहा करती थी कि आप वक्त पे घर नहीं आते, आप कभी मौके पर मौजूद नहीं होते। जफर इकबाल साहब भी तो है ना, किस कदर उम्दा, शुस्ता और बाकिरदार आदमी है, हालांकि शायर हैं। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हजरात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। हमारा जो क्लासिकल शोरा हैं, अगर आप उस अहद को देखें तो एक तरफ गदर मचा हुआ है, सब कॉन्टिनेंट जो है उस पे अंग्रेज जो हैं वो आके अपने जो पंजे हैं वो गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो क्लासिकल शोरा हैं वो कहीं लबो रुखसार की बात कर रहे हैं, वो कहीं गेसुओं की बात कर रहे हैं, वो इश्के जाना में गिरफ्तार हो चुके हैं, और उनका गम जो है वो सिर्फ ये है कि उनकी महबूबा जो है वो उन्हें नजर नहीं आ रही या उनसे उनकी गुफ्तगू नहीं हो पा रही। सादुल्लाह शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बात यह है कि इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये भी जिंदगी का हिस्सा है, हम बहुत संजीदा हो गए। मसलन मुनीर न्याई साहब का एक शेर है, मैं समझता हूँ पूरे उर्दू अदब में ऐसा शेर आपको नहीं मिलेगा, हुस्न तो बस दो तरह का खूब लगता है, मुनीर आग में जलता हुआ या बर्फ में सोया हुआ। अगेन हम फिर दूसरी तरफ निकल गए, हम तो शायरी डिस्कस ही नहीं कर रहे। शायर की बात कर रहे हैं, शायरी तो नहीं जी, शायर का जहां तक ताल्लुक है, शायर के अपने हालात जिंदगी, अक्सरियत शायरों की ऐसी है जो ब्रोकन फैमिलीज देकर गए हैं। आज हर घर से डॉक्टर जावेद इकबाल निकलता नजर नहीं आता। शायरों का कद देखें तो बहुत ऊंचे, लेकिन उनकी औलाद इसलिए कि वो अटेंशन मिल नहीं सकी। गाफिर साहब आपकी तरफ जाते हैं। जो परफॉर्मेंस की हो रही है ना बात कि शायर काम नहीं करता, पड़ा रहता है, अभी जावेद साहब का भी हवाला आ गया उसके अंदर। अच्छा, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, इसलिए कि शायर का जहन और फिक्र का काम है, आप उससे ये तवक्को करें। अच्छा, हमारा कोई दानिशवार एक जनरल से सवाल तो नहीं करता कि आप मिठाई क्यों नहीं अच्छी बनाते। आपकी इस बात के बाद तो गाफिर साहब ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अगर खानदान में कोई शायर पैदा हो गया है तो सफे मातम बिछ जानी चाहिए कि ले जनाब एक साहब पैदा हो गए हैं, ये पैरासाइट हैं, अब सारी उम्र इनकी खिदमत बाप करेगा, भाई करेंगे और उसके बाद बीवी करेगी। शायरों से अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा नाखुश है तो वो उनकी बीवी है। आप घर की बातें तो ना बताएं। नहीं, घर की बातें मैं तो जनरलाइज करके आपको बता रहा हूं। इस हवाले से मुझे करीब से देखने का मौका जरूर मिला, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, और मैं जान की अमान घर से तलब करने के बाद ये गुफ्तगू कर रहा हूं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सारे शायर बेरोजगार भी नहीं जी, एडवर्टाइजिंग कंपनियां शायर नौकरियां कर रहे हैं जी। जब फिल्म इंडस्ट्री साड़ी चंगी होती है, कतील सिपाही साहब, साहिर लुधियानवी साहब, इंडिया में आज भी शायर सबसे ज्यादा पैसा बॉलीवुड की वजह से कमा रहे हैं। जी। फैज अहमद फैज को लोग कहते हैं जी वो देखें कितने बड़े शायर थे, लेकिन ये हमीयत का तकाजा है कि जॉब भी करनी और पीआईए के लिए कॉपी राइटिंग भी करते थे। आज भी पीआईए का जो रनिंग स्लोगन है वो फैज का लिखा हुआ है। अब कसरे शान न समझे कि यार ये कोई काम है जो मैं करूंगा, ये फिल्मी शायरी मैं करूंगा, यानी मैं किसी इश्तहारी फिल्म में शेर कहूंगा। तो भाई किसी से मांग कर खाने से या बच्चों को बेतालीम रखने से, बच्चों को इलाज मालजे से महरूम रखने से बेहतर है कि अपने कद से थोड़ा सा निचला काम भी कर लें। जी सर, ये आप सही बात कर रहे हैं कि एक तो ये नई रियलाइजेशन भी यही है कि इंसान के अंदर जो क्वालिटी है उसको अगर आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करके उससे कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें अना का मसला बीच में आना चाहिए। जी आफ्ताब साहब ने जी बहुत अच्छी जो बात की है, मैं समझता हूँ कि इसको मैं जरा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि शायर जो है उसको शायरी को प्रोफेशन हरगिज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब उसे प्रोफेशन बनाएगा तो मेरे ख्याल उसके लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो मोहब्बत को अगर प्रोफेशन बना सकता है, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। गुलाम तो आप क्यों नहीं कहते कि जी मुझे वाकई को, या तो फिर आप बहुत अच्छे बढ़ई हैं, बहुत अच्छे तरखान हैं, बहुत अच्छे लोहार हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। सैयद जमीर जाफरी का वो दो शेर जो मेरा ख्याल है मैं लातादाद मरतबा इस्तेमाल कर चुका हूं, मुझे तो अब यूं महसूस हो रहा है उन दोनों शेरों का मुखातब बाकायदा शायर है कि शौक से नूरे नजर
लखते जिगर पैदा करो, जालिमों थोड़ी सी गंदुम भी मगर पैदा करो। और हजरत इकबाल का शाही तो कब का उड़ चुका, अब कोई अपना मकामी जानवर पैदा करो। बस थोड़ा बहुत को काम भी करो, ये तो कोई बात नहीं है जी, हम तो शायर हैं। जफर इकबाल साहब दा शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हाँ जी। अगर शायर जम पे है, अल्लाह ने उहदा मैन्युफैक्चरिंग फालट पा दिता है, तो फिर मुआशरे ਨੂੰ चाहिए ना कि उन्हें बर्दाश्त करे ਉਹਦੇ मुताबिक वो कायम है। नहीं, शायर कभी नहीं समझता कि मैं एक मजजूब हूं या मेरे में फालट पैदा हो गया, हरगिज नहीं। शायर तो फिर भी अपने आप को पैदाइशी तौर पर सबसे अरफा समझता है। वो तो माइंड कर जाता है कि कोई मुझे रिसीव करने नहीं आया। भाई पैसा तुम एक नहीं कमाते हो, कहते हो कि मुझे रिसीव करने को आए। सर ये कहाँ की बातें कर रहे हैं जी? ये तनज़्ज़ुल जो है ये मजमूई है पूरी सोसाइटी का, सिर्फ शायर का नहीं है। 60 की और 70 की दहाई तक, 80 की तक हमारे पास बहुत बाकमाल लोग। जिस शायर की मिसाल दी जा रही है वो कई 100 साल पहले की बात है। ये 200 ईयर्स पुरानी बात। उस वक्त जो मुआशरा था वो शायर को एक्सेप्ट करता था। लेकिन जिस शायर का तज़किरा हो रहा है वो बिलाशुबा उर्दू ही नहीं दुनिया के अजीम तरीन 10 शोरा में से एक था, और उसके साथ ये जो कुछ होता रहा सिर्फ इसलिए कि वो काम वाम नहीं करता था, वो कसरे शान समझता था। नहीं, गालिब की आप बात कर रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की जब वो जॉब लेने के लिए गए हैं और जब प्रिंसिपल साहब उन्हें रिसीव करने नहीं आए तो क्यों तो वापस चले गए। ये कौन सी अना थी, ये कौन सी, किसने उन्हें कहा था? जिस बंदे के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखें अब हम उसके पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं, शायरी उसकी वाकई बहुत बड़ी थी, बहुत अजीम, लेकिन आप जॉब लेने गए अपनी कॉज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, आप इतने सिंसियर हैं। अर्ज ये है कि अपनी उसी इगोइस्टिक जो जीनियस है उसकी वजह से तो वो जिंदा है। अगर वो उसी को छोड़ देगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि इज्जत और एहतराम जो है वो शोरा का या दानिश्वरों का शुरू से रहा है, लेकिन घर का जो चूल्हा है, घर के जो मसाइल हैं, बच्चों की जो फीसें हैं या बिजली के जो बिल हैं, वो सिर्फ इज्जत और एहतराम से नहीं दिए जाते। आप उनको माशरे में जितना मर्जी इज्जत और एहतराम दीजिए, लेकिन जब तक वो कुछ और नहीं करेंगे, जिस तरह की अभी हमने बात की और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ शोरा यहाँ पर हैं, इन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया कि शायरी जो है ये कुल वक्ती काम नहीं है, ये जुज़ वक्ती काम तो हो सकता है, शौक हो सकता है, किसी नजरिए के फरोग के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए, घर को चलाने के लिए, एग्री करता हूं, मुआशरे की जो जरूरियात हैं, जो आपसे लोग वाबस्ता हैं, उनको पूरा करने के लिए आप शायरी पे इन्हिसार नहीं। भाई बच्चे क्यों पैदा किए, शादी क्यों की? अगर आपने कहना है कि जनाब मैं फुल टाइम पोएट हूं, मैं तो सिर्फ, फिर तो आपने अपनी जिंदगी में 2, 4, 5, 7 बल्कि कसरत औलाद और कसरत इज़्दवाज इनके यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपने इकट्ठे यतीम पैदा कर दिए 7-8। बात सुने, आपने इससे कोई सबक नहीं सीखा। लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये बकवासियात तो तमाम शायरों के साथ होती रही हैं। गालिब को देखिए, मीर तकी मीर को देखिए, इन सब के साथ यही होता रहा है। उन्होंने भी असर नहीं होया तो होना इन्होंने भी नहीं। अच्छा सर, आपका तखल्लुस भी है कोई? बेहोश। क्या बेहोश? वो तो कह रहे थे टक्कर। सर टक्कर मारन तो बाद बेहोश ही होंगे ना। बाजी तुझे इसे कीता की? बस हो गया मेरे वीरा। खातून आप खुश नसीब हैं, आप एक शायर की बीवी हैं। एडी मैं खुश नसीब हाँ, तो शायर तुसी ले जाओ, मैंने टुटा 500 रुपये ही दे जाओ। बाजी 300 लेना जे। नहीं तुम क्या उनसे शायरी करवाओगे? सर साड़ा दिमाग खराब है। सारा सी जी शेरवानी जी पाई है ला के थले बिछानी है, लंबा पाना, हाथ इंज कर देना, रेडी च लैके ले फिरना। यार प्लीज यकीन करो, रोज का 2,500-3,000 तो कितने नहीं गया। हाँ है भी ख्याल मैनू क्यों नहीं आया? ये गल सुनो, कोई रेडी है ताड़ी नजर च? क्यों बाजी तू फ्रूट लाना? अरे भाई वो बकवासी लोग हैं, तुमसे चेहरा ले रहे हैं, तुम खाम खान को जवाब दिए जा रही हो, तुर्की बतुर्की उनके साथ साथ हो तुम। मेरे को जड़ा शाहरुख खान बैठे, मैंने की जवाब दिया? मैं की बोलना तेरे से? मेरे को ले चुप आहिस्ता धीमी आवाज में, वो दमे का मरीज है। बंदा मेरा है कि तेरा? नहीं तो बाजी तुहानू कदी नारान कगान सवाद नहीं लै गए शादी तो बाद? लो नारान कगान वो तो सिब्बी जावे तो नमूनी हो जाता। मैं एक बारी थरपारकर लै गई हाँ, उथे ठंड नाल मरण वाला हो गया। थरपारकर तो बहुत गर्मी होती है। इन्हां नू ठंड लगदी सी जी। नहीं तो वहां क्या करने गई थी? उथे एक पीर बाबा बड़ा वड्डा,
ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਲਗਾਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਆਪ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा गुस्सा भी चढ़ता है? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। अच्छा सर, ताजा तरीन किताब आपकी क्या नाम है उसका? आखिरी आरामगाह। सर क्यों फजूल बातें करते जा रहे मैं हैं? फजूल बातें कर रहा हूँ, फजूल हरकतें ये कर रहा है। आप देखिए, इसकी उम्र देखिए, आप इसकी सेहत देखिए, और इन खातून को देखिए किस कदर खूबरू खातून है। और पता नहीं ये भी शायद अन्नी थी। इन्होंने आप अन्ना तेरा मैं आपकी सपोर्ट में कह रहा तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि पाकिस्तान में भी यूरोप और अमेरिका की तरह प्राइवेट सुराग रसानों की खिदमात हासिल करने का रिवाज जोर पकड़ने लगा। ये प्राइवेट सुराग रसां की ने सर जी? ये कंपनियां होती हैं जो प्राइवेट लोग सरकारी इदारों की मुआवनत किया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा प्राइवेट सुराग रसान इदारे कंपनियां एस्टेब्लिश हो गई। प्राइवेट आई कहते हैं इनको। किसी बात की खबर लेनी हो, किसी की जासूसी करवानी हो। पाकिस्तान में 2010 पहली प्राइवेट आई कंपनी रजिस्टर हुई थी और वो बड़ी फाल है। 5 लाख रुपए से इनकी फी शुरू होती है। इन्ने पैसे सर चुगलियां करन दे। चुगलियां क्या है, मुखबरियां ही है। सर मुखबरी तो याद आया, साढ़े कोल भी एक मुखबरी वाला हुंदा सी। हाँ, हमारा प्राइवेट आई। जी जी, वो कितने आजकल सर? हम बात कर लेते हैं। खौतीनो हज़रात, हम चलते हैं डबी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं अपने प्राइवेट आई से। अस्सलाम वालेकुम सर। लॉन्ग टाइम। जी सर, लॉन्ग टाइम नो सी। नहीं, नो सी मैंने कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टाइम मत लीजिएगा, मैं इस वक्त बिजी हूँ। सर करते क्या रहे हैं इतनी देर आप? उस वक्त को छोड़ें, इस वक्त मैं फ्लाइट में हूँ। अच्छा, क्या है? फ्लाइट में हूँ, फ्लाइट में। तो जहाज में बैठे हैं? और मैं चील पे बैठा हूँ। अच्छा, लेकिन सर शोर क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा? लगता जहाज पाट है। वो करता हूँ, एक मिनट। आप भाई लेफ्ट साइड से लेने यहाँ से। हाँ जी जी। क्या? कोई नहीं, पायलट से बात कर रहा था, उसे कह रहा था लेफ्ट साइड चलो। आज आप बात करें। आप सर तुसी यकीन जानो, ये चिंग चिंग तो बैठे जे। आपने क्या मुझे को मुखबरी लेनी है या नहीं लेनी? अच्छा सर, को मुखबरी इनायत कीजिए प्लीज, बड़े दिन हो गए हैं सर। ये बहुत जबरदस्त किस्म की मुखबरी है, तुम्हारा कैरियर चेंज कर सकती है। ये लाहौर कैंट की बात है। अच्छा जी। ईद वाले दिन का एक वाकया है। एक खातून जो साबिक एमएनए हैं, अच्छा जी, उनके एक अंकल हैं, ठीक, जिनके साथ उनका प्रॉपर्टी के मामले पर थोड़ी सी इनकी आपस में रंजिश है। वह यूं आफ्ताब की इन्होंने कुर्बानी की। अच्छा जी, कुर्बानी तो कर दी, लेकिन वो जो कुर्बानी की बाकियात होती हैं, अच्छा जी, वो कहीं इधर उधर फेंक दी। अच्छा। उन्होंने अपने अंकल के साथ शिकायत की इस बात की और उनकी पिटाई कर दी। अंकल ने पिटाई कर दी? नहीं, अंकल की पिटाई कर दी। यानी खातून एमएनए ने? साबिक खातून एमएनए ने। यार आप कितने अनइंटेलिजेंट और कितने गबी। अच्छा आज मुझे बता दें किसने आपको एंकर लगाया, मुझे इतना बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। साबिक खातून एमएनए लाहौर कैंट में रहती हैं जी। उन्होंने ईद वाले दिन किसी नाचाकी की बिना पर अपने अंकल की पिटाई कर दी। महज पिटाई नहीं की, सर में जूते मारे। सर अंकल दी बावा नहीं सी। अब उन्होंने अपने डिफेंस में हल्का सा उन्होंने धक्का दिया, सेल्फ डिफेंस में। अच्छा। वो खातून गिर गई। अच्छा। बस उसके बाद होना क्या था साहब, एक वफाकी वजीर ने, बड़े दबंग किस्म के वफाकी वजीर ने फोन किया साहब पुलिस को, और उन्होंने कहा कि अंकल को चुको और अंदर करो। अच्छा जी। पुलिस ने आगे से उनको बात बताई कि भाईजान एक तो ज्यादती उन्होंने की, चप्पलें उन्होंने मारी, अंकल बेचारे ने अपने आप को बचाने के लिए हल्का सा धक्का दिया, वो गिर गई, तो हम उनको कैसे अंदर करें? या तो अगर आप कहते हैं तो हम दोनों पार्टियों पर चकरा देते हैं। अच्छा आगे हूँ आ करो ना, मुझे पता लगे। अच्छा, मुझे हैरत इस बात पे है कि इतनी अहम खबर अखबार में नहीं छपी। वो इसलिए कि मैं अखबार वालों को खबर देता तो वो छापते ना। क्यों, आपने क्यों नहीं दी उन्हें? मैं पागल हूँ 150 रुपए में खबर दे दूं? तो आज भी 150 देते हैं आपको? 150 बाजू का अच्छा मूड हो तो 200 की भी ऑफर कर देते हैं। अगर आपका इशारा उसी वफाकी वजीर की तरफ है जिधर मेरा ध्यान जा रहा है, तो फिर ये बड़े अफसोस से मैं आपको इत्तला दे रहा हूं कि उनकी मिनिस्ट्री वाकई तब्दील हो रही है और इन्हीं हरकतों की वजह से तब्दील हो रही है। और मेरी जान, सलमान शहबाज वहां पर पहुंच गया अमेरिका में एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, और तुम यहीं पे बैठे हो, तुमने क्या लुकाठें लगाई हुई हैं? जरा सोचिए। जब पुलिस ने बात इधर कर दी सर,
تھوڑی دیر بعد اسی پارٹی اور اسی برادری کے ایک اور وفاقی وزیر کا پھر فون آ گیا. اسی پارٹی جی اور اسی برادری کے وفاقی وزیر کا فون آ گیا. اچھا دوسرا وفاقی وزیر کون ہے یہ تو بتا دیں. اس طرح کے سینسٹیو سوالات جو ہے نا وہ سامنے جو گنجا بیٹھا ہوا نا گنجا اس سے پوچھا کریں آپ. اچھا آپ گنجے بھائی دو ایک ادھا ایک فل لے. مدینہ رات ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان اور پہلا لفظ ہے پلیٹ فارم. واہ واہ واہ. اس کو پلیٹ فارم کہتے ہیں. یہ پلیٹ فارم غلط ہے. یہ پلیٹ فارم ہے اور اس کی ابتدائی شکل تھی فلیٹ فارم. پلیٹ فارم. ہاں جی وہ ایک ہی طرح کا چبوترا سا ہوتا ہے نا فلیٹ ہوتا ہے. جی 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 جی. اس کو فلیٹ فارم کہتے تھے اس سے پھر پلیٹ فارم ہو گیا. سر چنگا پلا ساری زندگی اسی پلیٹ فارم سنتے رہے ہیں. اے پلیٹ فارم یہ کوئی نمی فارم ہے جی. فوٹو اسٹیٹ بھی سنتے رہے ہو نا. جی جی جی. وہ فوٹو اسٹیٹ ہوتی ہے. ہیلو پلیٹ فارم بھائی جی. میں نے تمہیں کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے. یہ زیادہ زیادہ ناصر انٹرسٹ رکھتا ہے. اصل لفظ کی ہے دسنا. پلیٹ فارم. پلیٹ فارم. میں تیرے ایسی کون ہی ماراں گا تین دس دیں. یہ تے علم دشمن ہے کوئی چنگی گل دشمن پیچھو یار ماشاء صاحب بیٹھے پیچھے لگتا چمرجی تو بول رہے ہیں. اچھا ریل گاڑی سے ہی ایک اور لفظ جی. ٹی ٹی. یہ جو کہتے ہیں ٹی ٹی صاحب آئے جی جی جی. ٹی ٹی پتہ کیا ہے کس کو کہتے ہیں؟ جیڑا بوتلاں ویچدا جی وچ سارا ٹکٹاں چیک کرنے والے کہندے ٹی ٹی آ گیا ٹکٹ دیو جی. اور یہ ٹی ٹی ای ہے. ٹی ٹی ای. پہلو ٹی ٹی ای. ٹی ٹی کہندے ٹکٹاں چیک کرنے والے. ٹریولنگ ٹکٹ ایگزامینر جو ساتھ ہوتا ہے. اے نا یاد رہے گا تو کی کران گے. اتر کے بعد چ بہ جاؤ. چنگا بھلا ٹی ٹی کہندے رہنا کتنا برا لگے گا. ٹی ٹی ای صاحب وہ اگلا کہ مینوں چھیڑیا تھلے اترو. سارا جن کو ٹکٹ نہیں ہوتی ہاتھ کچھ لکھ جاندے. یہ کی ہوندا جی؟ ٹکٹ چیکنگ نہیں ہوتی اس کو ٹریولنگ ٹکٹ ایگزامینر کہتے ہیں. سر اسی بس چ چلے جاواں گے. سر ایک اور ٹی ٹی بھی تو ہوتا ہے. ہاں ٹی ٹی پسٹل چائنیز جو ہے. ہیلو وہ بھی ٹی ٹی ہوندا ہے. ٹی ٹی وہ تو سر ای نہیں ہے نا. نہیں اس میں یہ وہ بعد چ ہوندی ہے. ای. اچھا جی پھر ایک لفظ ہے شالیمار. جی شالیمار غلط ہے. یہ شالامار ہے. مذکر مؤنث ہے. نہیں شالی جو ہے غیر ضروری طور پر میں سمجھتا ہوں کاتب کی وجہ سے یہاں بھی کوئی زیر ویر کا چکر ہے. کاتب دی کونگل وڈی ہر لفظ میں کوئی غلط ہی لکھیا ہے. ویلا بیٹھا سر کوئی. شالی مار جڑی ہے ہاں جی ایک گڈی وہ بھی غلط ہے. شالامار. شالا کہتے ہیں گیدڑ کو. ہاں جی ہیں جی کس کو؟ گیدڑ کو. اچھا تے سارا اور گدڑ. مار کہتے ہیں شکاری کتے کو. تے سارا شالامار باغ یہ گدڑ رہندے ہوندے سی. اس کی تاریخ ہے یار یا تو پوچھو کہ کیا تاریخ. اچھا جی گل سنن دو پکی گل 17ویں صدی کی بات ہے. جی. جہانگیر نے اچھا گل وہ کرن گے جڑی اسی پتہ بھی نہیں کر سکتے. 1619 میں شہنشاہ جہانگیر نے سری نگر میں ایک باغ کی جگہ مختص کرنے کے لیے چند دوستوں کے ساتھ دورہ کیا شہر کا. تو یہ وہ جگہ تھی جب اس مقام پہ پہنچی. یہ بڑا موزوں مقام تھا اور وہیں پر اتفاق سے ایک کتے نے گیدڑ کو پکڑ رکھا تھا. دبوچ رکھا. انہیں پیسے دینے سے گرفان تو اچھا نے گدڑ نے کان پڑائے. یار گل تو پوری کرن دیو. تو کسی نے کہہ دیا شالامار کہ شالامار یعنی گیدڑ کو کتے نے پکڑ رکھا ہے اور مار دیا ہے. شالا حرام جی اس گل دا اس گل دا کو تعلق ہو. تو شکاری کتے نے شکاری کتے کو مار کہتے ہیں. اور تمہیں یاد ہے کہ مار سانپ کو بھی کہتے ہیں. مار خور. مار گزیدہ. مار گزیدہ. مارے آستین. سر ایکو شبد نہ نے اسی سے پھر چلو بس کر دو ہوں. شالامار. میں تو کہ مک گیا پھر اسی سے وہ پھر چند برسوں بعد لاہور میں شالامار باغ کی بنیاد رکھی گئی. اور بالکل پھر چند برسوں بعد لاہور میں اسے کتے نے پھر گدڑ پڑیا. ہم لیتے ہیں بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. جی
सियासी हलकों का कहना है कि पीपी 72 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब में नवाज लीग की शिकस्त पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत ने सारे जिले की आला पुलिस तब्दील कर डाली। सर सीनियर अफसर ट्रांसफर की पई है ते जेडे छोटे अफसर ने वो होटलों को कुटन डे ने। ओ वेखो जिन्होंने अपने देश के अर्गे जिसे अगला बंदा दूसरी बारी ग्रेव भी नहीं गया, चौधरी साहब मारेंगे और की करेंगे। क्या हुआ क्या था? होटल गए जनाब खाना खान। अच्छा जी, 360 रुपए बढ़िया बिल। कहता 360 रोटियां खाती नहीं यार 360 का बिल था। 360 का बिल है जनाब, मेरा सिर्फ 5 आंदा सी, बाकी सारे 40 दा सी। सर 360 का सिर्फ सालन सी। अच्छा, रोटियां मुफ्त जितनी मर्जी खा लो। यार साड़ी जान तो बड़ी दोनों हासे आंडे ने। अच्छा तुमने मारा क्यों उसे? 360 रुपए का बिल बनया। अच्छा जी, मैं उन्हें देते 60 रुपए, मैं कहा यार 300 रुपए रियायत कर दे। एडा बड़ा फर्क है। ग्रेवी बहुत मांगते ग्रेवी। ग्रेवी क्या होती है सर जो जरा बाद च थोड़ा जिहा सालन मांगते की कही जी? ग्रेवी। ग्रेवी वो ग्रेवी वो नहीं होती, ऐसे उसका नाम ग्रेवी डाला है, उसको सप्लीमेंट कहते हैं। हेलो ये इन्होंने कहना ही नहीं होता। ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। यार तू दे नाम पे आप बड़े बड़े नहीं कर। लगता है पीछे किसी ने बकरा बनाया साडे। कोई अगर पैसे वाला आदमी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਵੇ, कोई कैदी यानी कोई हवालाती कैदी कोई केस, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। तो बात सुनो, तुम हर वक्त खाते ही रहते हो। ए भाई जी वाकया होया है, उस कैदी दी उस दिन सी जमानत। चौधरी साहब ने आख्या भाई आज तेरी जमानत हो जानी है, सानू तो रोटी खुआ। उस लैके होटल चापा चुप्पा रगड़ियां सी चंगी तरह। वो जिले बिल आया 6000 का, उन्हें आखिया जी मेरे को टका नहीं। फिर चौधरी ने चढ़िया गुस्सा, वड़ गया उन्होंने किचन दे विच। भाई 250 प्लेट चौधरी ने मिनट च धोती। निवला ना ये दस। अच्छा एक और जालसाजी अजीबो गरीब करते हैं। तुम्हें पता है कानून ये कहता है कि नाके पर जब तक थानेदार मौजूद नहीं होगा नाका लग ही नहीं सकता, गैर कानूनी है। ये पता क्या करते हैं? जैसे हमने ये जाली बनाया हुआ है ना थानेदार, डमी, ये डमी एक हवालदार को पकड़ते हैं, अपने एहलकार को, उसको वर्दी पहनाते हैं, पेप्स लगाते हैं, गाड़ी इनके पास होती है, वो परे करके कहीं खड़ी कर देते हैं। वो लगता है जैसे बड़ा कोई मसरूफ अफसर जो है ना, वो गाड़ी में बैठा है और बात कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है अपने किसी सीनियर ऑफिसर। वो मास्टर लगा होंगे, उसको ज्यादा देर खलोता नहीं जाता। और उन गड्डी के अंदर ड्रिप भी लगी। सर 2 घंटे च नाके च प्रॉफिट होना ना होए ते ऐसे चलो बाहर करके मंगल भी ला ले। और सर जेड़ी गड्डी रोकते हैं भी कहते यो साहब बैठा ते वो नहीं मनन दिया, गड्डी तेरी बंद होनी है। तुसी लोगों ने बूहे चाड़े है, हुण साडी कोई इज्जत नहीं करते, साडे नाल मजाक करते ने। अच्छे अफसरों की आज भी इज्जत होती है, करप्ट जो होते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। परसों की गल जनाब, मोटरसाइकिल से मुंडे आए ने, चौधरी टोपी ला के दौड़ गए। कैसा बेशरम अफसर है कि उसका जूनियर उसकी टोपी उतार रहा है सबके सामने। सर तुम जूनियर की गल कर रहे हो, ए मुहर्रर नहीं, ये उसका सीनियर है। तो ये मुहर्रर कैसे आप? ये जदों सर थाना बनया उदों तो मुहर्रर है। थाना तो कल बने हैं, जदों ना पाकिस्तान बनया उदों तो मुहर्रर है। ये हर हफ्ते तो नजरी होंगी है। इस हिसाब ना इंस्पेक्टर तकरीबन को 500 साल बाद बनेगा। आप सब आपने कराची की पुलिस नहीं देखी? शुक्र है तुसी बोल रहे हो, मैं क्या मसाला ला के रखे है। नहीं बात कर रहे दो यार, ठीक है। देखें ये तो लाहौर की पुलिस है, ये तो फिर भी कराची की पुलिस के हिसाब से सही है। कभी आप कराची की पुलिस देखें, वो तो शादी हॉल में से देगे उठा के ले जाते हैं। वो ले जाके देखा तो मतलब मुझे कि अगर थाने ले भी जावा की कुटाए मैंने तो सही। मैं सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ माजिद भाई जी, पुलिस का कोई सड़क पे एक्सपीरियंस? मुझे कराची मेरा जाती एक्सपीरियंस है कराची पुलिस का, और वो वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। माजिद भाई आपको क्यों पकड़ा था? नहीं वो पैदागिरी करते हैं, रात में लोगों को पकड़ लेते हैं। आप रात को काम से आ रहे थे? जी हाँ, फंक्शन से आ रहे थे। लोया चौक फंक्शन की खुश रहना चाहते यार बंदा टीवी से भी आ सकता है, बंदा कोई सर फंक्शन कह रहे थे, शादी भी तो अटेंड करने जाते हैं। आप समझदार हैं, इन्हें कौन बुलाता शादी से? माजिद जहांगीर इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि अगर किसी शादी पे गया है ना तो लोग ही दौड़ गए। जी खबर है कि अमेरिका के एक चिड़ियाघर में जंगली भालू फुटबॉल से करतब दिखाकर हाजरीन को महसूस करता है। ये अपना आड़ू ग्रेड भी भालू बनता सी जी, छोटी जी घगरी पा के। पहली बात घगरी पहन सकता ही नहीं। चलो जी ओदे मुंह निकल गया तो तुसी चुप कर जाओ। वैसे मैं
गुजारिश करना चाहता हूँ जी इजाजत करें, है? जी जी और मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ, हुक्म हुक्म। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने इस तवीलो अरीज करियर में वाकई कभी मौत के कुएं पर परफॉर्मेंस दी है? क्या बात है, मैं क्या को बहुत ही आला को मेरे बारे में डिस्कस होने लगी। मौत के कुएं पर बड़े बड़े फनकारों, ये अहनी जो है, हाँ वो तो ही पड़े जी। खुदा दी कसम मेरा दिल एडा हो गया, मैं क्या भी ए बना के गल आई है अनाउंसमेंट होती मौत दे खूते बालू खुसरा बाहर आ जाए फटाफट ये लिपस्टिक ला के हसन वाली गल है बालू खुसरा कभी खुसरा होता। तुम्हारे साथी कह रहे हैं। असि साथी नहीं असि ये ऑडियंस है सर। अच्छा नासिर, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ जी अपने करियर का आगाज तुमने किस ईयर में किया था? सारे हो गए ना कोई 15 साल। कहाँ किया था? लाहौर में? नहीं, फैसलाबाद। चंडीगढ़ तो नहीं, फर्नीचर का काम भी तो तुम करते थे। हाँ जी। उन्होंने जुत्तियां मार के कढ़िया से। क्यों जी? उन्होंने शादी के बेड का आर्डर दिता, इन्हें जनाजे वाला मंजा बनाता। कहते जहेज ना बनाओ आखिरत बनाओ। सर उस बाद फैसलाबाद शुरू किया। नहीं तो फैसलाबाद आके भी तुम फर्नीचर का काम किया? नहीं सर, मैं ड्रामे काम शुरू किया फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद में फिर तारिक जावेद साहब के साथ? हाँ जी, तारिक जावेद साहब लेके आए सर। बहुत बड़ा नाम था तारिक जावेद। अच्छा आड़ू साहब आपने? जी इन्हों के नाल होंगे सन। अच्छा, ये फर्नीचर खान का मुजाहरा करते सन। क्या मतलब खाने का? जी सर, खान का भी। अच्छा तुम्हें जिस तरह समझ नहीं आई, क्या मतलब खाने का? मास्टर जी, आपने अपने ताबनाक करियर का आगाज कहाँ से किया था? कब्रिस्तान तो जी। या ये कब्रिस्तान में क्या करते थे? ये लोगों को जिंदगी करो नफरत दो मास्टर जी बड़े बड़े मॉडल होंगे सन, बल्कि मॉडलिंग तो तुसी स्टार्ट कीता सी ना? बाजी दी कब्रिस्तान दे के सब्जी की दुकान। ये मुर्दे ने उसे करेले बेचती सी सर। करेले? हाँ जी, कब्रिस्तान मरासिया था। मुर्दा उदो तक करेले लेना। माजिद भाई, आपने आगाज जाहिर है कराची टीवी से किया होगा? किस शो से? मैंने सिंधी ड्रामों से स्टार्ट लिया था। हाँ जी, सिंधी कुआड़ी का रोल किया हीरो दे हाथ जी कुआड़ी सी यही सन। सदके जावा, मैं तो इन्होंने वे वे के डरी जानी है। मैं क्या पता क्या मैं वे वे के डरी जानी। अच्छा रूबी, आपने कहाँ से किया था आगाज? मैंने थिएटर से किया था। ये सर माशाल्लाह बड़े पुराने है ने, उदो टेलीफोन भी नहीं सी याद होया। ये सर लाहौर के थिएटर से खलो के ना शेखुपुरे की ऑडियंस बुलाती सी। वो कैसे? वे टिकटा खुल गई जावे, वो अपने बच्चे सुट के दौड़ पे। इधर को? नहीं जी उधर को। माशाल्लाह बड़ी आवाज पाई है इन्होंने। हाँ, वैसे वाकई शीबा हसन के बाद अगर मुझे कोई आवाज नजर आई है ना खवातीन के हवाले से, हमारी स्टेज की सबसे ज्यादा श्रिल जिसमें है वो इनकी आवाज। माजिद भाई ने कहूंगा उठ जाना सी, कान बंद नहीं। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।